afford. So there's a whole host of issues that come if we work on this model and we try to execute as quickly as possible. I always get questions on charging stations. So what we are doing is that we're going to put up, we already have level 2 charging stations in Pakistan. We'll be going after now commercial 480 volt DC fast charging stations. So these are the 2 stations that we're focusing on at this point in time for Pakistan. Thank you so much. Through this, Sapphire has partnered with Fauji Fertilizers FACE program and international assistance to address the problem. We are confident that with the introduction of precision agriculture, Pakistan can dramatically improve crop yields and also reduce costs. Thank you very much. Mr. Shahid Abdullah, for your words. That was truly inspiring. Now, please join me in welcoming the higher management of BYD via Zoom. We will be joined by Mr. Jasper Zeng. I'm representing BYD in Pakistan and including all this business of automotives and other business. So please allow me to do a brief introduction about BYD Company Limited. So BYD Company Limited was established in the February 1995 and is headquartered in China, Shenzhen City. The company currently employs approximately 220,000 people around the world, and its business spans in 4 major industries, including automobiles, buses, trucks, and second thing is the rail transit, new energy, and electronics. And so BYD is listed in Hong Kong and Shenzhen stock market. And BYD is committed to using technological innovations to promote sustainable development and achieve the goal of peak carbon and carbon neutrality. As of April 2021, BYD has applied for more than 33,000 patents and authorized about 21,000 patents. Use the automobile industry, how it's developing for BYD. So BYD adheres to independent innovation and masters all of the core technologies of the entire industrial chain of electric vehicle, including the batteries, motors, electronic controllers, and semiconductors. In 2008, BYD launched the world's first mass-produced plug-in hybrid EV. And in 2010, after 2 years, it proposed the world's first electric solution for public transportation, including the buses. The solution was later upgraded to a national strategy in China, forming a global consensus and continue to pioneer change in industry. In 2020, just last year, BYD launched the Blade battery with extreme safety to solve the pain point of the new energy vehicle market. For example, the battery risk, explosion, and burning. So Blade battery is free of all these concerns in the EV industry. And in 2022, to accelerate the transition from gasoline vehicle to new energy vehicle, BYD released the DMI Super Hybrid system. And now it's the sales, crowned sales in Chinese market. So BYD's electric vehicle sales have ranked first in China for 8 consecutive years. It has entered more than 300 cities in more
आपको जिस तरह शाहिद साहब अभी बता रहे थे कि आपने स्पिनिंग से काम शुरू किया, बट आई एम ग्लैड कि यू स्पन आउट ऑफ स्पिनिंग ऑल्सो, और आपने एक पाकिस्तान के लिए आप एक फ्यूचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले आप ही का ग्रुप जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रिसिजन एग्रीकल्चर में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी भावलपुर में, वो भी एक फ्यूचर का हिस्सा है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं ये दुनिया के फ्यूचर का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के लिए अशद ज़रूरी हैं, और इसलिए आपने इसमें जो कदम उठाया उसकी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने पॉलिसी बनाई थी 2019 के अंदर, और उसके बाद वो फिरती फिराती 2020-21 में फाइनली इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट हो गई है। इसमें बड़ी मेहनत लगी है। हमारी मिनिस्ट्री ने 2019 में ये पॉलिसी दी। एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी, बिकॉज एक जो नॉर्मल वे ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट्स नेवर इजी, और उसके लिए गवर्नमेंट के अंदर भी बड़ी कोशिश करनी पड़ी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है वो फॉरवर्ड लुकिंग है पाकिस्तान के लिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान 21वीं सदी में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजीज एम्ब्रेस करे और उसको लीप फ्रॉग करे उस चीज़ के अंदर, और स्पेशली इस चीज़ के ऊपर तो बहुत सख्त ये पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह जौहर साहब ने प्रेजेंटेशन में बताया कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इशू हमने पैदा नहीं किया, लेकिन इशू ऐसा है जिसके असरात पाकिस्तान फेस कर रहा है। हम टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं पिछले 10 साल से। अब उसके लिए पाकिस्तान ने एनर्जी साइड पे भी और फॉरेस्ट्री साइड पे भी इकदाम करने शुरू किए हैं। हमारा 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है, और एनर्जी साइड पे हमने एक फॉरवर्ड लुकिंग टारगेट दिया है कि हम अपने एनर्जी सेक्टर को क्लीन अप करेंगे। क्लीन एनर्जी हम चाहेंगे 60% ऑफ आर एनर्जी बाय 2030। उसका एक तीसरा लेग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारा मुनहसर है, और उसकी वजह यह है कि 40% जो पाकिस्तान की एमिशंस हैं वो ट्रांसपोर्ट से आती हैं। आपने एक ग्लोबल फिगर दिखाया था 10% का, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो एमिशंस हैं उनमें से 40% ट्रांसपोर्ट से आती हैं। और उसके दो नुकसान आते हैं। एक तो दुनिया को नुकसान है कि आप कार्बन एमिशंस हवा में डाल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को ख़राब कर रहे हैं, और दूसरा हमें डायरेक्ट नुकसान भी है कि आप एयर पोल्यूशन को ख़राब कर रहे हैं लोगों के लिए जो कि शहरों में रहते हैं खुसूसन। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये एक विन विन आंसर है पाकिस्तान के लिए। इसके अंदर पाकिस्तान के 4 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, और कस्टमर का भी फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कस्टमर के लिए चलाने की, जिस तरह आपने बताया, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 60% कम हो जाती है। यानी कि जो आप पेट्रोल के मुकाबले में आप 60% कम कीमत के ऊपर ये गाड़ियाँ, ये रिक्शे, मोटरसाइकिल चला सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो एमिशंस हैं वो तकरीबन 70% ये कम कर देता है। तो जो एमिशंस हम दे रहे हैं, जिसका दुनिया को भी नुकसान है, हमें भी नुकसान है, वो हम 70% कम कर देते हैं। तीसरा ये फ़ायदा ये है कि हमने इसकी स्टडी कराई थी USAID के साथ। हमारा जो सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल है वो ऑयल का है, कि हम तेल मंगाते हैं बाहर से। तो उस तेल के बिल को अगर हम अपना ये 30% बाय 2030 का टारगेट मीट करते हैं तो तकरीबन $2 अरब सालाना का हमें इम्पोर्ट बिल कम होता है हमारा, क्योंकि ये कम आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल होता है। और चौथा इसका फ़ायदा ये है कि आप एक नई इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन जॉब्स पैदा कर रहे हैं, जिससे अभी आपके ये मैं बड़ा खुश था कि आपने जो कंपनी जिसको चुना है वो भी एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, बिल्ड योर ड्रीम के नाम से उनका नाम है। और वो बता रहे थे कि 95 में उन्होंने शुरू किया और आज तकरीबन 2.5 लाख बंदे वो एम्प्लॉय करते हैं। तो ये आई थिंक एक नया फ्यूचर है दुनिया का, और इसको हमारी पॉलिसी का मकसद ये था कि आप जैसे ग्रुप और पाकिस्तान के बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं वो इसमें कदम बढ़ाएं और इसको आगे लेके चलें। तो ये टैक्सी सर्विस जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, और ये नॉर्दर्न एरियाज के लिए स्पेसिफिकली बहुत बड़ी एक सर्विस होगी। मेरी चीफ मिनिस्टर JB से बात हुई थी इसके मुतालिक, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, और इसमें इंशाल्लाह हमारी मिनिस्ट्री भी वी आर वर्किंग आउट अ प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक से भी मेरी बात हुई है कि इसको हम थोड़ा सा आपको किक स्टार्ट भी कर सकेंगे उसके अंदर। मकसद ये है कि ये हमारा वो एरिया है जहाँ से हम टूरिज्म जनरेट करते हैं। और टूरिज्म क्यों जनरेट होती है? क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा है, खूबसूरत जगह है। अगर उसकी खूबसूरती को ख़राब कर देंगे, माहौल में धुआं डाल देंगे,
तो फिर टूरिस्ट भी नहीं जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए ये एक अगेन विन विन टेक्नोलॉजी है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या हम ये इसको हाइट के ऊपर ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर होती है कि नहीं होती, तो वो आपने सॉल्व किया। आपने बताया कि ये आपकी टैक्सी सर्विस स्टार्ट हो रही है, जो कि यहाँ इंशाल्लाह 10 आपकी स्टार्ट हो जाएंगी आज के बाद, और ये इस्लामाबाद से मरी और नथिया गली तक कस्टमर्स को लेके जाएंगी और उसी कीमत पर लेके जाएंगी, एक बेहतर कंफर्ट के साथ, बेहतर सहूलत के साथ, अच्छे माहौल के साथ कस्टमर को। तो आई थिंक ये भी एक बहुत विन विन टेक्नोलॉजी है। और जो आपका जो बीच में जिस बंदे ने टैक्सी लेनी है और चलानी है, उसको तकरीबन 12,000 रुपये दिन की बचत होगी इस चीज़ के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त, जैसे मैंने बताया, इशू है। इसमें सिर्फ एक चैलेंज जो है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो कहाँ लगेगा, कब लगेगा। पहले वो लगेगा कि पहले टैक्सी आएगी, तो वो एक दुनिया ने भी इसी प्रॉब्लम के साथ हैंडल किया, और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इंसेंटिव्स दे रही है और मजीद भी देगी, ताकि हम इसको भी एक्सपैंड कर सकें और जो टैरिफ है उसका वो कम कर सकें, ताकि आपका टैरिफ जो है वो, आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि अगर रिन्यूएबल बेस्ड टैरिफ है तो उसको हम मजीद सब्सिडी दें। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वी विल टेक अ समरी टू द कैबिनेट कि जी इसको देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोलर के ऊपर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोलर सस्ता है, तो फिर आपकी चार्जिंग अगर उसी पे हो रही है तो फिर आपको वो टैरिफ सस्ता मिलना चाहिए। और इसमें अगेन माहौल का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, और पाकिस्तान के जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसके मुताबिक हम ये फैसला आगे लेके चलेंगे। तो मेरी तरफ से आपको बड़ी मुबारकबाद, और इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू दिस टैक्सी स्टार्टिंग ओवर हियर। एंड फॉर आवर चाइनीज़ guests, I would just like to say that we would like to thank you for coming to Pakistan. And I had a meeting with the Chinese ambassador just yesterday, and we discussed the EV technology of the Chinese, because China is the leader in electric vehicle technology in the world. So we would like the Chinese companies to not just come to Pakistan for selling CBUs, but also starting a manufacturing unit in Pakistan, because that's what the future is. And I think if we go over the inflection point, the Chinese companies will come to Pakistan to set up their units in Pakistan, and that will help spur our economy and save the environment, not only for Pakistan and also for the world. So बड़ी आपका शुक्रिया, आपको बड़ी मुबारकबाद, और मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम पहली पाकिस्तान की टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। All right, thank you so much for his words. I would also like to thank all of you, all key stakeholders, for being here today and showing your support for the initiative. As we depart today, let us all play whatever role we can in improving the situation in Pakistan and all over the world, so that we can create a beautiful, healthy country for our children and our younger generations to enjoy. Thank you all for your time.